السلام علیکم، ملکائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کمیر شریف کا، جہاں حکومت کی طرف سے احساس کفالت پروگرام کے پیسے لینے میں خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بینک کے فرنٹ پر احساس کفالت پروگرام کے پینا فلیکس تو لگا دیے، لیکن پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی والے سے مزید جانتے ہیں کمیر شریف سے نمائندہ ون ٹی وی ظفر اقبال بٹی سے۔ جی، حکومت کی طرف سے احساس کفالت پروگرام کے پیسے احساس سینٹر اور حبیب بینک سے لیے جا سکتے ہیں۔ چند دن پہلے چیئرمین پرسن ثانیہ نشتر نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا جن عورتوں کو احساس کفالت پروگرام میں اہل کیا ہے وہ احساس سینٹر اور ایچ بی ایل کے اے ٹی ایم سے آسانی کے ساتھ 14,000 روپے لے سکتے ہیں۔ حکومت کے اس اعلان کو کمیر شریف کی برانچ حبیب بینک نے مسترد کر دیا۔ بینک کے فرنٹ پر احساس کفالت پروگرام والی فلیکس تو لگا دی اور پیسے دینے سے صاف انکار۔ سائیوال احساس کفالت پر عورتوں کا بڑا ہجوم، پیسے لینے مشکل۔ عوام الناس نے ارباب اقتدار سے مطالبہ کیا ہے اس پر فل فور نوٹس لیا جائے تاکہ غریب خواتین کو پیسے لینے میں دشواری نہ ہو۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال بٹی، A1 ٹی وی، کمیر شریف۔ کراچی ایڈمنسٹریٹر ایسٹ رحمت اللہ شیخ کا PS99 کے مختلف علاقوں کا دورہ، محمدی گوٹ، سکیا گوٹ، ایوب گوٹ میں چلنے والے پیور بلاک کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ایسٹ کراچی رحمت اللہ شیخ و پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرقی کے جنرل سیکرٹری لالا عبدالرحیم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی ADP میں پوری کراچی کے لیے اسکیمیں رکھی ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے کام پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں سیوریج روڈوں کے کام اور ساتھ میں پیور بلاک کے کام بھی تیزی سے شروع ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت نے اسٹریٹ لائٹس اور سڑکوں کو بہتر کرنے کے لیے کام شروع کیا ہے۔ ان منصوبے میں سڑکوں کی مرمت کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے کام ماشاءاللہ DMC ایسٹ میں جس تیزی سے چل رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور یہ بھی ہوگا کہ جس روڈ کو آپ نشاندہی کریں یہ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن میں شکریہ ادا کروں گا سندھ گورنمنٹ کا، خاص طور پر CM صاحب کا، جس نے اپنی ADP میں یہ ساری اسکیمیں ڈالی ہوئی ہیں۔ دیکھو جو پہلے ہمارے اسکیمیں تھے ADPs میں مختلف میں، اب ان کی کاموں کی آغاز ہو رہی ہے۔ محمدی گوٹ میں آپ دیکھو اندر سے مکمل محمدی گوٹ کی کام شروع ہوا ہے، اسی طریقے سے پانی کی کام ہے، اسی روڈ کا کام ہے۔ یہ ساری حلقے میں آپ کو انشاءاللہ ڈیپینس، باقی جن نے یہاں اعلان کیا ہے 99 ڈیز میں اس کو پیرس بنائیں گے، ان نے نہیں بنایا۔ جن نے ہم پہ تنقید کیا ہے، جن نے کہا تھا اس وائس چیئرمین نے کیا کیا، آج وہی پیپلز پارٹی کر کے دکھائیں گے۔ یا مکمل ہمارے اسکیمیں جو ہیں تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے کا کام انشاءاللہ۔ گمبٹ لیاقت پور کے گاؤں ٹنڈو محمد پناہ کے رہائشی فہد سبتین کا پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین 14 ڈاؤن عوام ایکسپریس سے پاؤں پھسلنے کے باعث ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ سیٹھ رجک نے ان کے ورثاء کو اطلاع دینے کے بعد لاش گمبٹ گمبز کے سرد خانے میں رکھ دی ہے۔ جیکپ آباد قادر پور میں حضرت پیر باقر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک منایا گیا۔ اس موقع پر سندھ اور بلوچستان کی مختلف شہروں سے سینکڑوں مریدین اور صوفیہ فنکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عرس مبارک میں کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عرس مبارک پیر باقر شاہ بخاری کی درگاہ پر چادر چڑھائی گئی۔ صوفی فنکاروں نے محفل میں ہلچل مچا دی۔ مہمان خصوصی سردار آیت اللہ کھوسو، معتبر علی چانڈیو، سید فیاض شاہ، سید مہر شاہ، عاشق فقیر، ڈاکٹر قیصر نے شرکت کی۔ شہداد کوٹ A سیکشن پولیس کے خلاف کھوکر برادری کی خواتین اور مردوں کا شہداد کوٹ کی عدالت کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر مسلمات وحیدہ کھوکر، مسلمات شبروز، علی رضا کھوکر اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ رات کے لطف علی کھوکر نے اپنے گھر سے جا رہا تھا کہ A سیکشن پولیس نے زبردستی میرے والد کو تشدد کیا، جس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے DIG لاڑکانہ، SSP کمبر شہداد کوٹ سے انصاف کی اپیل کر دی ہے۔ دیپال پور میں تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کار سوار فیملی کو گرفتار کر کے 32 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزمان میں 2 خواتین سمیت 4 افراد شامل۔ گینگ میں شامل دیگر ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ ASP دیپال پور سرکل اویس خان کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قصور ملتان روڈ پر کار سوار فیملی کو روک کر گاڑی کی خفیہ خانوں سے بڑی مقدار میں چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان میں 2 خواتین سمیت 4 افراد شامل ہیں۔ کار سوار فیملی میں شیخ پورہ کے رہائشی اویس خان کا کہنا تھا کہ ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور یہ آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔
हैदराबाद एसएसपी साजिद अमीर सदोजोई की हिदायत पर एसएचओ भटाई नगर थाना जाहिद नूनारी ने अपने स्टॉप के हमरा के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारकर 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली जो मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी। उनको अपने मालकों के हवाले भी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अपनी मोटरसाइकिलों की हिफाजत करें, ताले लगाएं। पुलिस ने मोटरसाइकिल 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई आतफ उर्फ आती डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ वारदातों में लूटी हुई रकम 1 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान से डकैती के 3 मुकदमात ट्रेस, मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ मंसूर अमान की एसएचओ फेरोज अहमद भट्टी और टीम को शाबाश दी गई। डीपीओ मंसूर अमान ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क भर में आज हिंदू बरादरी रंगों भरा त्यौहार होली जोशो खरोश के साथ मना रही है। सिजावर में भी होली त्यौहार मनाने के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हिंदू बरादरी के बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में खास अहमियत रखता है और होली त्यौहार के दौरान एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक कर खुशी का इजहार किया जाता है। होली के मौका पर अपने दोस्त अहबाब को जमा करते हैं और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। होली बनाने के साथ मंदिरों में पूजा पाठ करके पाकिस्तान की खुशहाली और अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। कोटली सतियां चोर घर के ताले तोड़कर 4 लाख ले उड़े। दूसरी जानब मुलजिम से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कोटली सतियां से नुमाइंदा A1 टीवी नवीद सती से। कोटली सतिया के इलाका करोर में चोर घर के ताले तोड़कर नकदी 4 लाख ले उड़े। करोर के इलाका कलना बसान में चोरों ने बेवा औरत को भी न बख्शा, नकदी रकम 4 लाख रुपए ले उड़े। नहीद अख्तर सकना बसान ने थाना कोटली सतिया में दरख्वास्त देते हुए अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रात को नामालूम चोरों ने मेरे घर के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए जो कि मेरी बेटी की लोगों ने मदद की थी और 2 लाख रुपए मेरी बहन जो कि बेवा है उसकी रकम नामालूम चोर चोरी करके ले गए। इन्होंने पुलिस के आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल शांति नगर के करीब कच्ची आबादी की झोंपड़ियों में आतिशज़दगी से झुलसने वाली कमसिन बच्ची भी अस्पताल में चल बसी, जिसके बाद उस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक बच्चों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें 4 बहन भाई भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे A1 टीवी कराची नबी बख्श खास खेली से। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़े में जान बहक बच्चों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें 4 बहन भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जान बहक और ज़ख्मी होने वालों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान है। मरने वालों में 2 भाई और 2 बहनें शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त 12 साला साइमा, 11 साला फरहान, 9 साला कामरान और 8 साला तैयबा के नामों से हुई है, जबकि 4 साला ज़ेबा ज़ख्मी हुई थी, जो बाद अज़ान दौरान इलाज ज़ख्मियों के ताब न लाते हुए दम तोड़ गई है। जबकि हुकाम का कहना है कि मुतासरा ख़ानदानों के ताल्लुक यही रहीम यार खान से है, जिनकी मैयतें उनके आबाए इलाके रवाना की जाएंगी। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग लगने से 5 झोपड़ियाँ मुकम्मल तौर पर जलक गई हैं और आग के वक्त बच्चे झोपड़ियों में थे, जबकि उनके वालिदैन काम पर गए हुए थे। फायर ब्रिगेड के 2 टेंडर ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने दावा किया है कि आग लगने के वाक़या शार्ट सर्किट की बायस पेश आया है। जी नादरा हाफिज जतोई में वकला की जानिब पर तशद्दुद वाक़या होने पर नादरा हाफिज के अमला ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। ख़वातीन और दीगर शहरियों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों का दफ्तर के बाहर हजूम लग गया। शहरियों ने मेन रोड ब्लॉक करके नादरा के अमला के खिलाफ नारेबाजी की, ताहम जतोई पुलिस ने रोड खुलवा कर ट्रैफिक बहाल करवा दी। जबकि शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए वकला पर इल्जाम आयद किया कि वकला बतौर एजेंट फी टोकन 500 से 1000 रुपए लेते हैं और अपने काम बगैर तरतीब के करवाते हैं। उन्होंने कहा कि वकला नादरा ऑफिस में वकालत का रोब छाड़ते हैं। वकला शहरियों से पैसे लेकर जल्दी काम करवाने के लिए अमले पर दबाव डालते हैं। लड़ पे भला इन्हें बंद किते, इन्हें औरतों को भी कहते ने बहुत बुरे तरीके से धक्के दिया।
चीनी कोर्ट के नवाई यूनियन काउंसिल सादकाबाद और विलेज काउंसिल विला झलन में एक शानदार और पुरवकार वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान की इलेक्शन के मुतालिक तरबियत की जाएगी और तमाम विलेज काउंसिलर्स में जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के कारकुनान और वर्कर्स भरपूर तौर पर हिस्सा लेंगे। ज़िले की क़यादत और मुकामी क़यादत ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पूरी पाकिस्तान की कौम एक ही आवाज़ है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुल्क को मुस्तहिकम बनाना है। मुल्क के तोल और अर्ज के इलाकों में जमीयत उलमाए इस्लाम के मकासद और मंशूर को पहचानना है। क़यादत के फैसले के मुताबिक पूरे विलेज काउंसिल में अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे। मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मौलाना अब्दुल रऊफ आदिल बटानी बिला जनरल विलेज काउंसिल में इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार कामयाब कराएंगे। बडग्राम यूनियन काउंसिल थाकोट गांव होटल के अवाम ने भी जमात इस्लामी बडग्राम के तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार हाजी इमदादुल्लाह खान के हक में फैसला सुना दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बडग्राम से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, बडग्राम यूनियन काउंसिल थाकोट गांव होटल के अवाम ने भी जमात इस्लामी बडग्राम के तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार हाजी इमदादुल्लाह के हक में जो है अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ पे कार्नर मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो है वो गांव के लोगों ने शिरकत करनी थी, लेकिन बाद यहाँ पे जो है वो अवाम की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, जिसके बायस जो है वो मीटिंग जो है वो जलसा गाह में तब्दील हो गई है। यहाँ पे हजारों अफराद ने शिरकत की। जो यहाँ पे जगह जो मुख्तस की गई थी वो फिर धड़ाधड़ जो है वो भर चुकी थी। उसके बाद जो है वो वहां से बाहर दीवारों के बाहर भी लोग मौजूद थे काफी तादाद में, जिन्होंने जमात इस्लामी को जो है वो सपोर्ट करने के लिए जो है कैंपेन का भी जो है वो वादा किया। जी एडवोकेट बाबर महमूद बसरा कत्ल केस डीपीओ चिन्योट कैप्टन ने रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना चनाब नगर पुलिस ने पेशावराना महारत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कातिल में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ रोज कबल थाना चनाब नगर के इलाके में एडवोकेट बाबर महमूद बसरा के कातिल का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही मैं खुद जाए वकुआ THQ अस्पताल लालियाँ पहुँचा। दिलखराश वाक़े पर लवाहकीन से गहरी दुख और अफसोस का इजहार किया। इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी करवाई। फौरी तौर पर फ्रांसिक टीमें, क्राइम सीन टीमें, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई। जाए वकुआ को कार्डन किया गया, शाहिद इकट्ठे किए गए, नाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और नामालूम मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए DSP लालियाँ अजीज़ अहमद की निगरानी खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। शेखपुरा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह अलैहि सुन्नत और जमात हनफी बरेलवी शाह कॉलोनी के ज़ेर एहतमाम बाद अज़ नमाज इशा खुसूसी आमद नकाबत का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद राना से। जी बिल्कुल, महफिल की सदारत जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह अलैहि सुन्नत वाली जमात हनफी बरेलवी की इंतजामिया ने की। महफिल नात का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि पाकिस्तान भर से आए मसरूफ़ नात ख्वानों ने अपने मखसूस अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ हासिल किया और महफिल को गरमाया। खुसूसी खिताब के लिए हज़रत इलामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल करीम नक्शबंदी आस्ताना आलिया शरफ तशरीफ़ लाए। मौलाना अब्दुल करीम साहब ने खुसूसी खिताब किया। महफिल में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस महफिल नात के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिद्दी शेखपुरा के सदर व टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास, सदर प्रेस क्लब शेखपुरा मुबशर हुसैन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राना इस्मान, तहरीक इंसाफ शेखपुरा के रहनुमा मियाँ अफजाल हैदर, मरकजी अंजुमन ताजमन के शेखपुरा के नायब सदर अवैस राणा थे। अलीना शेख और रब नवाज मीरानी पसंद की शादी करने के बाद तहफ्फुज़ के लिए नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे नवाब शाह से हमारे नुमाइंदे रहम अली जरदारी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको तफसील से आगाह करता चलूँ कि पीरगोड के इलाके महसर के रिहायशी अलीना शेख ने कश्मोर के इलाके करमपुर के रिहायशी रब नवाज मीरानी से नवाब शाह कोर्ट में पसंद की शादी कर ली। पसंद की शादी करने के बाद नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुँच गए। अलीना शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरा रब नवाज मीरानी से रंग नंबर के ज़रिए 3 माह कबल रब्ता हुआ था और हमारी आपस में मोहब्बत हो गई। मैंने अपनी अम्मी को शादी का कहा तो उसने मुझे मना कर दिया और घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती दूसरी जगह कराना चाहिए, तो मैंने मजबूरन अपना घर छोड़कर नवाब शाह कोर्ट में अपनी रज़ा खुशी से शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक रब नवाज मीरानी से निकाह किया है। शहदाद कोट में बढ़ती हुई बदअमनी के सिंध पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। सैकड़ों कारकुनों ने पार्टी झंडों,
पेनाफ्लेक्स व प्ले कार्ड समेत उठा रखे थे। STP के जिले सदूर कामरेड हयातानियो शबीर मक्सी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि SSP बशीर ब्रोही की तैनाती के बाद शहदाद कोट में बदअमनी बढ़ गई है। उन्होंने कहना था A सेक्शन के SHO तुफैल अहमदी और उनके प्रैक्टिस चोरों और मवेशियों के साथ बढ़ रही हैं और SSP एक खास कारकुन है और उन्हें तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत सिंध IG सिंध से मुतालबा किया कि SSP बशीर बरोही और शहदाद कोट के SHO तुफैल अहमदी को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। बसूरत दीगर शहरियों की APC में हल्का बंदियों कमर शहदाद कोट रोड की बंदिश और शटर हड़ताल की जाएगी। जमीन की खातिर अपनी ही जानी दुश्मन बन गए, माल की चमक या सियासी दबाव। हासिलपुर के नवाही इलाके जमालपुर की रिहायशी बेवा मीना शबनम का अहले इलाका के हमरा अपने ही जेठ बाअसर जिम्मेदार के खिलाफ एहतजाज। इसी वाले से देखते हैं मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में खवातीन को अपना हक हासिल करने की खातिर दर बदर की जलालत तो मिल जाती है मगर इंसाफ नहीं। एक तरफ तो इंसाफ और अपना हक हासिल करने की खातिर जिंदगी बीत जाती है तो दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से खवातीन को उनका हक दिलाने की यकीन दहानी भी करवाई जाती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। ज्यादती कर रहे मार अख्तर साहब, नूर अहमद साहब, रऊफ साहब, सारे इन्होंने पहले अपनी दुकाना बनाई ने उन्होंने उन्होंने कब्जा कर ले एवं जमीन कब्जा कर देने नाल झूठे पर्चे कर देने। साढ़े पर्चा कराया उन्होंने कि इन्होंने असला चुके है, इन्होंने खाला बनना है। साढ़ा कोई असला नहीं सी, कोई खाला नहीं बनया सी, सब झूठे झूठिया फर्क आई है ना। हासिलपुर के नवाही इलाका जमालपुर की रिहायशी बेवा मीना शबनम का अहले इलाका के हमरा अपने ही जेठ बाअसर जिम्मेदार के खिलाफ एहतजाज। जमीन की खातिर अपने ही जानी दुश्मन बन गए, माल की चमक या सियासी दबाव। थाना काइमपुर में झूठी FIR का इंदराज भी करवा दिया गया। अर्ज है कि जो झूठी FIR इन्होंने मुझ पे और मेरे मुलाजमों पे करवाई है, मार अख्तर, मार नूर मोहम्मद और मार साद अब्दुल और ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये इन लोगों ने झूठी FIR पैसे देकर करवाई है। ये खारिज करवाई जाए और मेरा हक जो है ज़मीनों का मुझे दिया जाए। टिंडोला यार में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर आवाम से लूट मार जारी। कवरेज के लिए गए तो डिवाइसेस होल्डर ने मुझ पर मेरे कैमरामैन पर हमला कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सादिक कालरो से। जी बिल्कुल, टिंडोला यार में कम से कम 10 से 15 सेंटर लगा जाते हैं पर अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। ये पैसे गरीबों के लिए हैं। डिवाइस होल्डर फी कार्ड पर 2 से 3 हज़ार वसूल कर रहे हैं। ज़िले इंसान में बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ बहुत सी शिकायत की हैं पर कोई पूछने वाला नहीं। डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार और SSP टंडोला यार को नोटिस लेना चाहिए। SM स्कूल में इमरान नामी शख्स सरेआम पैसे काट रहा है। जैसे ही हम वहाँ कवरेज के लिए पहुँचे, कवरेज के दौरान एक औरत से पूछा तो उसने कहा 1000 रुपये काट दिए। फिर इमरान नामी शख्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और गाली गलौज करता रहा और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी। मैं SSP टंडोला और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ इसमें जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाह का 383वां उर्स के दौरान दिन डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी SSP ठट्टा और डॉक्टर मोहम्मद इमरान DIB ब्रांच AD शेख मैनेजर औकाफ नवाज खान पठान दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाह पर फातिहा पढ़ी और फूलों की चादरें भी चढ़ाई और दरगाह पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया और कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान पुलिस अफसरान और दीगर महकमा औकाफ ने भी मुलाजमीन को हदायत जारी की। हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जाए, ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। ज़िले अफसरान ने ज़ायरीन से भी मुलाकात की। ज़ायरीन ने पुलिस महकमा औकाफ ज़रीन सामिया की जानिब से उर्स मुबारक के मौका पर किए जाने वाले इक़दामात को बेहद सराहा। मैनेजर औकाफ नवाज खान ने डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर अली कादरी SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और दीगर अफसरान को सिंधी अजरक टोपी भी तोहफे के तौर पर पेश की। खपरू में अकलीती बरादरी ने होली का त्यौहार जोश जज्बा से मनाया। बच्चियों बड़ों ने हर साल की तरह एक दूसरे पर रंग डालकर अपना त्यौहार मनाया। होली धामधूम से मल्हाई रही है। तमाम वडी रैली कृष्णा मंदिर का निकती है जेका मुख्तलिफ रस्तन का थींदी। शन शाइन काटन फैक्ट्री पहुंचंदी जिते मटकी ऐं ॿिया जेके प्रोग्राम उहे रखियल आहिनि।
रोहड़ी सक्कर में सिंध के मशहूर औलिया कराम सदरुद्दीन बादशाह का 743वां सालाना उर्स शुरू हो गया। कोविड-19 की वजह से 2 साल के बाद दरगाह पर जायरीन के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी के साईं कुमैर हैदर शाह, चेयरमैन लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध, डिप्टी कमिश्नर सक्कर जावेद अहमद और संघार मलिक के हमरा रोहड़ी में सदरुद्दीन शाह बादशाह के उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर हाजिरी देते हुए फातिहा खाने की और फूलों की चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी का इंतजाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर दरगाह मुंतज़मीन की तरफ से सिंध का रवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजरक आने वाले मेहमानों को पहनाई गई। संजर चांग से वन टीवी के नुमाइंदे इरफान मुगल के बहनोई के बड़े भाई मोहम्मद अब्बास मुगल के बड़े बेटे का कराची के निजी अस्पताल में रज़ाइल से इंतकाल हो गया, जिन्हें इनके आबाई कब्रिस्तान कनरी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज़ जनाजा सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत मुअज़्ज़िज़ शहरियों समेत रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुख की इस घड़ी में A1 टीवी की पूरी टीम इरफान मुगल के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़रत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।